So, right. So, जहां तक इसका सवाल है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस, but indirect taxes, direct taxes, इसका impact on your simple demand and supply diagram, उसका impact on consumer producer surplus, उसका impact on incidence. For me, if I had to guess what would come in indirect taxes, it would definitely be something to do with incidence of tax. I have a feeling कि उसके ऊपर आ सकता है. It's been a while इसके ऊपर नहीं आया है. It's been quite some time actually. मार्च के अंदर जरूर आ चुका है, मार्च 24 के अंदर, बट कंसिडरिंग आपका मई जून इज यूजुअली व्हाट दिस रीजन गिव्स, उसमें टू क्वाइट एन एक्सटेंट इसके ऊपर कोई खास सवाल नहीं आया है. ऑल दो अभी अक्टूबर के अंदर मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन एंड एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन आया है, but from the micro aspect it hasn't come for a while now. So I feel the incidence of tax is one of those indirect taxes के साथ that we should attempt a few questions. And while we're doing that, तो थोड़ा सा अपना आपको ब्रश अप कर लेते हैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए. पर ऑनेस्टली कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस भी देखा जाए तो वो 23 जून के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. But then again, it's been a while for that. So maybe like a combination of this with something would be a nice one. Another one that we can actually look at is the buffer stock. Buffer stock हमारे वेरिएंट के अंदर बफर स्टॉक hasn't come, right? So it is one of those के अब I think हमारी बारी है उसके आने की. तो अब इनडायरेक्ट टैक्सेस और बफर स्टॉक दोनों आ जाएं साथ, that is highly unlikely, right? But we will try and attempt both in today's session. And we'll look at some of the questions which will, I'll try to maximize our coverage of it. ठीक है जी. So this is how we should go about it, in my opinion, today. One second, please. All right. So in front of you, there's a question. Obviously, it has nothing to do with taxation, but हमारा एक छोटा सा एक understanding है of consumer and producer surplus. Uh, I'm not talking about macro today. I'm just talking about micro and one topic only, which is taxation with like consumer surplus a little bit. Even I'm not going to talk about buffer stock today. Buffer कल मैं probably another topic जो कि आपकी syllabus के अंदर है, but it hasn't been tested for a very very long time, is the specialization and division of labor. माइक्रो के अंदर इफ आई हैड टू गैस कि बिल्कुल ही एक ऑफ टॉपिक आ जाए टू थ्रो किड्स, दैट वुड बी वन ऑफ दोज टॉपिक्स, क्योंकि उसके कोई खास क्वेश्चन है भी नहीं. तो probably tomorrow or day after in the next session I will deal with another set of micro questions. ठीक है जी. So question number 2A we're looking at, and let's just go over what is expected in this question. लिखते हैं with the help of a diagram. Explain what happens to consumer surplus when a price of a product increases, and consider how this might occur in a market of your choice. So अगर हम इसके ऊपर बात करें तो obviously एक डायग्राम मांगा है, but knowledge and understanding, please start thinking in these terms, because the examiner is giving you marks in these terms. The first paragraph that you should be writing is something which deals with knowledge and understanding for 3 marks. It should be nice and simple and straightforward for the examiner to read and assess कि अच्छा जी, this is what it should be about.
उसके बाद अगले 3 मार्क्स जो हैं वो आपके एनालिसिस के होने चाहिए फॉर अनदर 3 मार्क, और उसके बाद लास्ट एक एवेल्युएटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए which should deal with the market of your choice, right? For about 2 marks, considering consumer surplus. Can you start a question with a diagram? Absolutely, you can. There is absolutely zero सिचुएशन के हम बोले यार बच्चे ने पहले डायग्राम बनाया और एक्सप्लेनेशन बाद में है, या कुछ टर्म्स की डेफिनेशन जो थी वो शुरू में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं की. नो सच थिंग व्हाटसोएवर. वी हैव द एबिलिटी टू सी कि तुमने अपना आंसर अगर हैप हैजर्ड भी किया हुआ है तो वी कैन स्टिल मार्क यू ऑन इट. आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इज द recommended structure of your essay. With the help of a diagram, explain what happens to consumer surplus when a price of a product increases. They've already given you the direction. The direction is the price is increasing. What if they had said that the price changes, right? So agar paisa circumstance hota, you have to, there is no choice. You have to show me a rise and you have to show me a fall in the price, and considering that. Okay जी, यहां पर आपके लिए आसान किया हुआ है इन्होंने. तो we are making consumer surplus. A lot of kids ask at this point कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ सप्लाई सॉरी डिमांड कर्व बना के और उसी की तरह कर लें. Absolutely you can. We have no issues whatsoever. लेकिन अगर नीचे क्वेश्चन के अंदर कोई प्राइस रिलेटेड कोई बात होती कि हाउ इट वुड इम्पैक्ट द प्राइस इन द मार्केट ऑफ योर चॉइस और समथिंग, तो फिर वो वाली सिचुएशन के अंदर इट वुड बीन सम अदर डिस्कशन. लेकिन यहाँ पर एक सिंपल डिमांड कर्व would have been perfectly fine. For example, this is if you make a diagram like this, कोई मसला नहीं. ठीक है. In fact, I'll proceed with that. Question is about if the price rises, what happens? तो मेरे पास एक ये वाला डायग्राम है. सॉरी, आई हैव दिस डायग्राम जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं ये दिखाऊंगा कि इफ द प्राइस राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, कंज्यूमर सरप्लस को क्या होगा. दिस इज माय डायग्राम. ओके, और फिर ऑब्वियसली आई विल हैव टू डू एन एक्सप्लेनेशन. Explain what happens to consumer surplus when the price of a product increases. तो यहां पर हम फिर ये लिखेंगे, इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी उससे पहले आई नीड यू आई नीड यू टू डू अ फ्यू थिंग्स अबाउट कंज्यूमर सरप्लस. I need you to define consumer surplus. What is consumer surplus? In your answer, I need an explanation that consumer surplus is the difference between what the price consumer is willing to pay and what they actually pay. 1 mark. Okay जी. दूसरा मार्क, सिंपल सा डायग्राम, प्राइस क्वांटिटी क्यू पी ओ क्यू ओ, समथिंग लाइक दिस. इधर सप्लाई कर्व बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि फिर मुझे सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करके प्राइस राइज दिखानी पड़ती. ठीक है, दैट वुड हैव बीन फाइन, नो इश्यूज व्हाटसोएवर. माय इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड इज price, quantity, demand curve downward sloping, and this is my market price PO and QO. कंज्यूमर सरप्लस के बारे में और क्या चीज लिखी होनी चाहिए मेरी नजर में, क्योंकि अगेन इट्स वेरी फ्लूइड राइट नाउ कि किस तरीके से तुमको मार्क एग्जामिनर देता, बिकॉज मार्किंग स्कीम अभी बनी ही नहीं है. तो कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस. ठीक है. तो एग्जाम्पल एरिया 1 + 2 + 3, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस हो गया. फिर उसके बाद
फॉर मोर फर्दर मार्क्स, क्वेश्चन तो बोला है प्राइस राइज हो जाए तो क्या होगा। सो एज शोन इन द डायग्राम, इफ द प्राइस rises from P0 to P1, then quantity demanded falls from Q0 to Q1. You're not going to get marks for any of that. Price rises, quantity demanded falls, and your new consumer surplus area is just area 1. Therefore, consumer surplus falls. Okay? डायग्राम के अंदर आपने नोटेशन के साथ दिखा दिया, इस तरह की लेबल्स है। ये जरूर क्या करो, इस तरह से प्राइस राइज हुई है तो डिमांड कर्व में मूवमेंट अलोंग द कर्व है, लिखना चाहते हो तो लिख लो। Right? There's no harm in that. The main question is about what's going to happen to consumer surplus. It goes from 1 plus 2 plus 3 and it falls. Fall का word important है, and it falls, the consumer surplus decreases to just area 1. This would constitute about 6 marks over here. And consider how this might occur in a market of your choice. अब ये कौन सी मार्केट की बात कर रहे हैं? We're assuming it could be any product market. My personal preference कि जब वो तुम्हें मार्केट की बात करें तो you can talk about agriculture and manufacturing. In this question, this is what I would have done. Agriculture versus manufacturing. ठीक है? And for one major purpose I would have done. अगर तुम नहीं भी करो ना agriculture और manufacturing, but you take something like elasticity into consideration, that how agriculture is one essential, तो उसके अंदर जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है ज्यादातर, और मैन्युफैक्चर्ड के अंदर ज्यादातर इट इज इलास्टिक। ओके जी। तो फिर मैं ये बात कर सकता हूं इस पॉइंट के ऊपर फॉर माय इवैल्यूएटिव डिस्कशन, that in agriculture, if the price rises, then the fall in consumer surplus is greater than a fall in is greater in inelastic markets than a fall in elastic markets. I hope you understand what I have just said over here. लेकिन क्योंकि हमने सीखना है, you don't need to make the next diagram that I am about to make, but for understanding कि ये क्यों, ये इस तरह से मैं क्यों कह रहा हूँ कि कंज्यूमर सरप्लस के अंदर ज्यादा बड़ा ड्रॉप आएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू इलास्टिक मार्केट। तो इसका एक डायग्राम बनता है। इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू नो दिस डायग्राम। सो इसको इस तरह से कर लेते हैं, because I know how I'm going to make the diagram and I want to show कि inelastic में there's going to be a relatively larger fall. This is what I'm gonna do, sorry. Price, quantity, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से मैं गुजारूंगा दोनों को, ठीक है। एक मैं मार्केट दिखा देता हूं इलास्टिक की। आई होप यू कैन सी द कंज्यूमर सरप्लस ओवर हियर। ठीक है जी, जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ये वाला एरिया है, राइट? ऑल अग्री, राइट? दिस इज कंज्यूमर सरप्लस इन एन इलास्टिक मार्केट। However, in an inelastic market, the consumer surplus is everything below the demand curve over here, and that would have been it. अब जब प्राइस राइज करेगी, I'll show such के प्राइस जो राइज की है
वो इलास्टिक मार्केट में इस तरह से इफेक्ट करेगी, क्वांटिटी इज गोइंग टू फॉल क्वाइट सिग्निफिकेंटली, और सेम प्राइस राइज इन इलास्टिक मार्केट के अंदर एक बहुत ही माइनर सा फॉल करेगी. बट व्हाट आई वांट टू शो इज दैट हाउ इलास्टिक मार्केट में जो कंज्यूमर सरप्लस है, जो गिरा है, ओके, ओरिजिनल के हिसाब से जो कंज्यूमर सरप्लस में फॉल आया है, that is this entire area below the demand curve and above the market price PO. Because of the price rise, that's your new quantity demanded, so that's your consumer surplus loss. लेकिन इलास्टिक मार्केट के इन इलास्टिक मार्केट के अंदर व्हेन द प्राइसेस रोल, now that's your new quantity. तो जो बड़ा सा कंज्यूमर सरप्लस था उसके अंदर this area represents inelastic में consumer surplus loss. तो क्लियरली यू कैन सी दैट द ग्रे एरिया जो इलास्टिक का था वो कम है, और जो इन इलास्टिक का रीजन है वो ज्यादा है. सो इन इलास्टिक के अंदर देयर इज अ बिगर फॉल इन द कंज्यूमर सरप्लस मार्केट. So this is what my evaluation sort of is, in where I will make a simple discussion on markets of my choice. Okay जी, जरूरी नहीं है तुम एग्रीकल्चर और इस तरह से करो, तुम कोई भी लग्जरी नेसेसिटी प्रोडक्ट मार्केट्स भी ले सकते थे. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज इट शुड बी अ मार्केट ऑफ समथिंग. ठीक है. फिर वो कहते हैं डिस्कस व्हाट फैक्टर्स डिटरमिन द चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस एंड हाउ दीज फैक्टर्स वैरी for different types of goods and services, right? It's very similar. ऊपर वाले क्वेश्चन से बहुत similar है. What are the factors that change consumer surplus? तीन चीजें हैं जो कंज्यूमर सरप्लस को मेनली अफेक्ट करती हैं. पहली चीज तो आपने ऊपर डिस्कस कर ली है, ओके, विच इज प्राइस. है ना. प्राइस गोज अप, कंज्यूमर सरप्लस falls. Price goes down, consumer surplus goes up. ये एक फैक्टर है. Second, elasticities of demand. I mildly touched upon it in the previous question कि अगर inelastic है, elasticity is inelastic, तो कंज्यूमर सरप्लस को क्या होगा, वर्सेस अगर इलास्टिसिटी इलास्टिक है तो फिर कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, आगे द क्वेश्चन दैट आई एम गोना इवेंचुअली गो टूवर्ड्स इज कि अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स लगाता हूं, इलास्टिक डिमांड कर्व में क्या होगा और इन इलास्टिक डिमांड कर्व में क्या होगा. ठीक है. तो इफ आई डू लाइक अ रफ डायग्राम ओवर हियर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर मैं एक सिचुएशन करता हूं where I do an inelastic market versus a situation where I do an elastic market, for the same, ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सेम प्राइस चेंज दिखाना, but let's say for the same price change when the price rises, I'll try to do similar. Let's say छोटा सा प्राइस राइज है ना मेरे नीचे वाले डायग्राम में. I'll do same thing. Thing to notice is out of the total consumer surplus,
जो कि ये सारा एरिया है कौन सा, ऑल द वे हियर, ये इन इलास्टिक का कंज्यूमर सरप्लस है, ये इलास्टिक का कंज्यूमर सरप्लस है, बहुत ही छोटा सा इधर जाके ये, राइट। इलास्टिक में ऑलरेडी कंज्यूमर सरप्लस बहुत थोड़ा सा है, इन इलास्टिक में बहुत ज्यादा है कंसिडरिंग सेम प्राइस। बिल्कुल। जब प्राइस राइज हुआ तो वन थिंग वी ऑब्जर्व इज कि इन इलास्टिक मार्केट के अंदर इतना गिरा है और इलास्टिक मार्केट के अंदर इतना गिरा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं टू द टोटल, इन इलास्टिक मार्केट के टोटल कंज्यूमर सरप्लस का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा गिरा है। और इलास्टिक मार्केट के केस में ऑफ द टोटल अ बिग चंक हैज फॉलन। Now this is a different comparison to what I did in the previous part. In the previous part I compared the blue versus blue और मैंने कहा था inelastic का बड़ा हिस्सा है। Agreed if you're comparing the losses for the same price change. लेकिन if I compare to the original, this fall is nothing as compared to इसके ओरिजिनल के कंपैरेटिवली। ये दो बातें हो गई जिसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस में चेंजेस आते हैं। तीसरा रीजन दैट वी हैव is the demand curve itself. What if there is a shift in the demand curve? What happens to consumer surplus? Imagine if price was PO and QO and you're saying कि भाई consumer surplus is this part right here. This is your consumer surplus. Let me highlight. This is your consumer surplus area. ठीक? If the demand curve shifts to the right, what happens? If the demand curve shifts to the right, what is likely to happen? अब obviously supply curve तो नहीं है इधर, मैं एक roughly एक supply curve भी बना लेता हूँ so I can show कि ये मेरी market price है. So if this is my supply curve, imagine if the demand curve shifted to the right. Now what has happened? Well, the price has gone up. What is your new consumer surplus? तो अब मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं कि मेरा जो नया कंज्यूमर सरप्लस है that is area below the demand curve, the new demand curve, and above the price. What I see is that the consumer surplus has actually increased. ये डायग्राम कहीं उसमें है नहीं, कहीं भी बुक्स वगैरह में तुमको नहीं मिलेगा, but in theoretical aspect you should know how to be able to answer this. Let's go back to the question one more time. Discuss the factors that determine, वो मैंने डिस्कस कर लिए, price rise, price fall, elastic, inelastic, demand curve shift or not. कोई भी दो को भी अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कोई मसला नहीं है. How these factors vary for different types of goods and services. अब different types के अंदर आप वही बात कर सकते हैं, normal good, maybe inferior good, luxury, necessity, तो इसकी बेसिस के ऊपर then you can talk about कि elastic and inelastic होगा तो कितना बड़ा increase आएगा कितना बड़ा decrease आएगा. How will these factors have an impact on those things? तो एक छोटा सा evaluation हो सकता है. But this is just to give you a sense of today's main topic के taxation का किस तरीके से कंज्यूमर सरप्लस और उस पे इफेक्ट आ सकता है. सो कंसिडरिंग द सेकंड क्वेश्चन हियर, this is the second, again this is the product is just an idea के लिए तुमको मैं दे रहा हूँ. यूजली इनडायरेक्ट टैक्सेस डीमेरिट या किसी चीज पे ही लगता है. कैन डीमेरिट कम? आई डोंट थिंक आना चाहिए डीमेरिट, बिकॉज डीमेरिट के ऊपर क्वेश्चन, रीजनेबल क्वेश्चंस आ चुके हैं इन द रीसेंट पास्ट. तो मेरे ख्याल में तो डीमेरिट के थोड़े से कम चांसेस हैं, स्पेशली जून के अंदर आई है इसके ऊपर.
Many government has introduced sugar taxes in order to restrict consumption of soft drinks and other products containing high amount of sugar. With the help of a diagram, explain the effects on the market of a new specific tax on sugar and consider whether an ad valorem tax would be more suitable. So, question बनता है, क्या specific and ad valorem are still part of the exam? इस पे आ सकता है कुछ? Is it even in the course? Well, it's there in the book, right? I've taught you दोनों तरीके के taxation. एक percentage based है और दूसरा unit based है, right? We've done that. But a lot of the book, it's not there, the discussion of specific. In fact, in the historical past, uh, there haven't been much of the questions on this, but एक subtle तरीके से एक case study के अंदर इसके ऊपर जरूर आ चुका है. तो because I found this to be one of those अजीब किस्म का question कि why would they give something like this? So let's talk about it for a minute. कि अब indirect taxes के अंदर ये भी तो एक टाइप है. देखें जी, फर्स्ट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कुछ चीजों की होनी चाहिए. नंबर वन, ये इनडायरेक्ट टैक्स का टाइप है, दोनों टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन करना आना चाहिए तुमको. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं. यू डोंट से दैट यू आर इन serious problem. It is imposed on a good or a service. What does it do? Well, it raises the cost of production. So what does it really do? Well, it shifts the supply curve to the left, okay? And it raises the price, ठीक है? And reduces the quantity demanded for a product. डायग्राम इसका बनाओ या नहीं बनाओ, वैसे तो बनाना चाहिए, लेकिन पहली तो मेरी ये पूरी लाइन ऑफ एक एक्सप्लेनेशन है which I always like to do. You should also do that. फिर इसका डायग्राम क्या बनाओगे? इसका जो डायग्राम बनेगा, एक सिंपल सा अच्छा डायग्राम. ऑनेस्टली आई हैव गिवन मार्क्स टू किड्स जो इस तरह से बिल्कुल ही फ्री हैंड डायग्राम भी बना लेते हैं. ओके, आई विल नॉट इनकरेज यू टू डू दैट. I have honestly given marks on diagrams which are really small and tiny, as long as there is clarity. I would recommend you, all examiners might not be like me, make at least a 5-liner or a 4-liner diagram. Nice and neat. Okay? Pen, pencil does not matter. Demand and supply diagram, equilibrium, this is always your starting point. You must do this. Okay? अब इसके ऊपर आपने कहा कि एक नया स्पेसिफिक टैक्स लगेगा. स्पेसिफिक टैक्स लगने की वजह से आपका सप्लाई का पैरेलल लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा. You make sure that your diagram is parallel. The shift is parallel. उसकी वजह से प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी. I'll make these nice arrows. I'll mark my equilibrium. In fact, one of the most important thing that I will also do is I'll put these red dot lines, arrows over here. ये क्या दिखाती हैं? ये contraction and demand दिखाती हैं. जब मैं अपनी explanation करूंगा, explain the effects on the market of a new specific tax, this is what I will do. It shifts the supply curve to the left, it raises the price, it reduces the quantity demanded, it creates a contraction in demand, or it creates a movement along the demand curve. Now you may ask, is that necessary? I have seen putting these kind of things, movement को थोड़ा सा importance ज़्यादा देना शुरू कर दिया इन्होंने. So this is what I'll say about this. Okay? इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर जब आप स्पेसिफिक टैक्स को एक्सप्लेन करेंगे तो स्पेसिफिक टैक्स के अंदर यू मस्ट टेल मी
इट इज ए टैक्स पर यूनिट। एग्जाम्पल भी दे दूंगा मैं। इट इज ए टैक्स पर यूनिट। हमारे यहाँ कौन सा ऐसा टैक्स है जो पर यूनिट लगता है? समथिंग लाइक जो पेट्रोल के ऊपर लगता है। पेट्रोल के ऊपर आपने लगा दिया ₹50 पर लीटर। ये हो गया आपका स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है। इधर यहाँ पे ये शुगर का कह रहे हैं, तो एग्जाम्पल शुगर ₹50 पर केजी। शुगर इज इन केजीज, राइट? तो ये आपका इस तरीके से हो गया। डायग्राम भी रेलेवेंट हो गया। आई थिंक आई शुड डू दिस ताकि तुम लोग गलती ना करो। पेट्रोल नहीं, इसको शुगर ले लेते हैं। तो फॉर शुगर टॉकिंग अबाउट ₹50 पर केजी, and it causes a parallel shift upwards. I think every bit of this is important. हो सकता है तुमको 1 मार्क इस पूरी बात पे मिले, 1 मार्क इस पूरी बात पे मिले, 1 या 2 मार्क इस डायग्राम के ऊपर मिले। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, वो सब इसके अंदर चला जाएगा। दूसरी बात जो हमें एड वलोरम के बारे में पता होना चाहिए कि एड वलोरम एक परसेंटेज बेस्ड टैक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लगा दें शुगर के ऊपर 10% ऑन, ऑब्वियसली इट्स अ परसेंटेज बेस्ड टैक्स ऑन प्राइस और वैल्यू। प्राइस पे या वैल्यू पे 10% आपने टैक्स लगा दिया। इसका शिफ्ट कैसा आता है? ये जो अभी मैंने डायग्राम बनाया है, अगर मैं एड वलोरम का बना रहा होता तो फिर मैं क्या करता अपने डायग्राम के अंदर? तो फिर उस सिनेरियो के अंदर my diagram would have been something like ad valorem. तो मैंने बनाया इस तरह से है कि मेरा जो टैक्स रेट है ना, दोनों के अंदर मैंने कोशिश की है कि ये जो टैक्स रेट है ना, वर्टिकल डिस्टेंस, ये जब हम इंसिडेंस पे आएंगे ना आज के पूरे एजेंडा के ऊपर, ये देखो दोनों केसेस के अंदर मैंने कोशिश की है टैक्स एग्जैक्टली सेम लगे। ठीक है। डिमांड कर्व आई ट्राइड के सिमिलर रखने की कोशिश की है उसके अंदर। बट व्हाट रियली हैपेंस इज कि इन दोनों सिनेरियो के अंदर जैसे जैसे प्राइस राइज करेगी इस प्रोडक्ट की, तो इसका जो टैक्स रेट है वो बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा बिकेगा उतना ज्यादा टैक्स रेट में इंक्रीज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर तुम टैक्स रेट देखो इक्विलिब्रियम के ऊपर ओरिजिनल पे, और इसका देखो टैक्स रेट, तो यू कैन क्लियरली सी कि टैक्स रेट जितना ज्यादा वॉल्यूम बिकेगा उतना ज्यादा टैक्स रेट लगना शुरू हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है जी। एज फार एज इट गोज, प्राइस के अंदर ज्यादा बड़ा इंक्रीज आता है यूजुअली। एड वलोरम के अंदर जो प्राइस राइज है, देर इज, जो क्वेश्चन का अगला हिस्सा है ना, कंसिडर वेदर एन एड वलोरम टैक्स वुड बी मोर सूटेबल। क्यों? क्योंकि हार्मफुल गुड की बात हो रही है, शुगर की बात हो रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारी इवैल्यूएशन के अंदर वी वांट टू टॉक अबाउट कि एड वलोरम से क्या फायदा हो सकता है। तो हम कहेंगे बेशक हो सकता है एड वलोरम की केस के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइस राइज होगा और जितना ज्यादा क्वांटिटी सेल होगा उतना हाई टैक्सेशन लगेगा, एंड दैट हाई टैक्सेशन हैज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग द कंजम्पशन इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस के अंदर। सही। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से that is how we can sort of like talk about it. Specific tax
या एड वलोरम करो, इसको तुम इस तरह से सोच लो कि रेस्टोरेंट के ऊपर जब तुम जाते हो या पेट्रोल खरीदते हो, पेट्रोल आप क्वांटिटी बेस्ड आपको टैक्स पे करना है हर लीटर। एक गरीब आदमी अपनी मोटर बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलाता है, और एक अमीर बंदा अपनी करोला के अंदर जो है 40-50 लीटर डलाता है। तो अमीर 50 लीटर के ऊपर एक सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेगा पर लीटर, ऑब्वियसली टैक्स अमाउंट ज्यादा पे करेगा, वर्सेस एक गरीब आदमी जो है वो 1 लीटर के ऊपर पर लीटर सेम ही पे कर रहा है। रिग्रेसिव है नेचर के अंदर। मेंशनिंग समथिंग अबाउट रिग्रेसिव इज नॉट अ बैड आइडिया इन योर इवेल्युएशन, कोई मसला नहीं है उस बात के लिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव है। होता यह है कि हाई ऑक्टेन और रेगुलर पेट्रोल दोनों के ऊपर आपने 10-10% लगा दिया, ठीक है। अब रेगुलर पेट्रोल है लेट्स से 200 रुपया पर लीटर, जो अमीर भी डलाता है, गरीब भी डलाता है, मिडिल इनकम भी डलाता है। 200 पे एट द रेट ऑफ 10% मीन 20 रुपया का टैक्स अमीर भी देगा, गरीब भी देगा पर लीटर। लेकिन हाई ऑक्टेन के ऊपर अगर आप 10% लगाते हैं तो आपको पता है हाई ऑक्टेन जो है महंगा है। तो अमीर बंदा टारगेट हो सकता है रिलेटिवली कि वो ज्यादा परसेंटेज पे करेगा इसके ऊपर। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर ये बात अप्लाई हो सकती है। अम, ठीक। तो सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक टैक्स क्वांटिटी को टारगेट करता है, और एड वैलोरम जो है वो प्राइस के ऊपर मजीद टैक्स लगता है। दोनों कंज्यूमर की जेब से ही निकलते हैं प्रिटी मच। लेकिन जस्ट टू गिव यू अ सेंस, जहां तक बर्डन्स की बात है, क्योंकि मैंने दोनों डायग्राम इतने सिमिलर बनाए कि दोनों के अंदर हमें सिमिलर बर्डन्स ही नजर आ रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिक टैक्स के अंदर जो है ना, प्रोड्यूसर बर्डन टेंड्स टू बी अ लिटिल, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी, लेकिन नो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, दैट वोंट वर्क ओवर हियर। तो ये आपका एक आइडिया है। तो वीव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच इज स्पेसिफिक वर्सेस एड वैलोरम टैक्स। क्या ये आपके उसमें लिखा हुआ है? ऑनेस्टली इट इज नॉट सेइंग। तुम्हारे कोर्स के अंदर जो लिखा हुआ है इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ लिखा हुआ है। लेकिन फॉर सम रीजन टेरी कोक हु वाज एन एग्जामिनर डिसाइड्स कि यू नो व्हाट, it might be a good idea to keep this also. चलें जी, पार्ट बी के ऊपर आ जाते हैं। लेट्स जस्ट वेरी क्विकली गो ओवर पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर उसी सिचुएशन को हम लेके चल रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स वाली। डिस्कस वेदर अ शुगर टैक्स इज द बेस्ट वे of restricting the consumption of soft drinks and other products containing sugar. तो ऑब्वियसली टैक्सेशन का आपने तो पहले शुगर टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। You have to talk about the advantages and the disadvantages of it. ठीक है। फ्रॉम द एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से प्राइस राइज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। तो दैट्स गुड, दैट्स एप्लीकेबल। इट इज मच मोर easy to apply and large tax base. You understand this? टैक्स बेस आपका ज्यादा हो जाता है क्योंकि हर बंदा जो शुगर खरीदता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम हैज टू पे दिस टैक्स। अमीर गरीब, बच्चा बूढ़ा, कोई भी खरीदे, इनकम वाला, भीख मांग के, एवरीवन हैज टू पे दिस टैक्स। ओके जी। so that is like two good advantages of it, एक उसकी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम द डिसएडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू, शुगर डीमेरिट है, इनइलास्टिक है, इतना ज्यादा ड्रॉप नहीं आएगा।
तो जो आप करना चाह रहे हो यू माइट नॉट बी एबल टू डू इट। दूसरा डिसएडवांटेज, रिग्रेसिव है नेचर में, अमीर और गरीब पे बराबरी नहीं कर रहा। गरीब को पर केजी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है ऑफ देयर इनकम, और अमीर बंदे को फॉर द सेम केजी पेइंग द सेम अमाउंट उसकी इनकम के रिलेटिव बहुत छोटा सा है। दीज आर गुड इनफ, because the question is about, is this the best way? That means you will not qualify for a level 3 answer, and your evaluation will not be counted unless you talk to me about another way. Another way जो कि हमें बहुत पसंद है, and this can apply in many different contexts, is the provision of information. सेपरेटली भी आ सकता है प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी। इफ यू हैव टू डिफाइन व्हाट इट मीन प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो व्हाट इट मीन्स इज दैट यू वांट people to be aware of something. In this case, we want the people to have a higher awareness, or they want more, or you want to give them a higher knowledge to understand that sugar is a demerit and it's a harmful good, right? Because there is an information failure over here. ठीक हो गया? तो जब आप ये अवेयरनेस देंगे तो डिमांड में रिडक्शन आएगी, and hopefully sugar and sugar related products demand is going to fall. But for full level 3, we want limitation of this policy. इसका जो इम्पैक्ट है अनसर्टेन है। जो आपने पॉलिसी, आपने जो कैंपेन बनाई है, द क्वालिटी ऑफ कैंपेन, the reach of campaign, the money spent on campaign will decide the reach of the campaign. Okay? It is much more long run and uncertain. If we were to talk about the impact of it, that's good enough. ठीक है जी? क्या taxation is one of the best ways? अच्छा, information failure will always exist. Okay, even if you give people awareness about the harmful, जैसे हम सिगरेट के केस में देखते हैं, कोई इसको नहीं पता। जब तुम छोटे से बच्चे थे उस वक्त भी तुमने इनफ एड्स देखी थी और माँ बाप ने इतना समझाया था कि ये एक हार्मफुल सी चीज है, तो फिर क्यों पिए जा रहे हो? यू नो, सो there will always be that lack of knowledge and understanding about this, and the effect would be uncertain. Is it the best way? I would like to talk in terms of short run versus long run. Short run के अंदर tax can really work. Okay, at least government will make a lot of money and they can do good advertisement campaigns, and they can, spend that money on the healthcare of those people affected by these smoking and all of that. सही। जहां तक कैंप एडवर्टीजमेंट एंड प्रोविजनिंग की बात है, वो लॉन्ग रन के अंदर ज्यादा इफेक्टिव है, बट देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी, and it takes time for it to have an impact, but it solves the problem in the long run. So this would be something of my discussion on this in this context. ठीक है जी। फिर उसके बाद another question that I would like to sort of combine now is the first two things that we did. Explain how consumer surplus is affected by an increase in the price of a good, and consider whether imposing a new indirect tax increases or reduces the consumer surplus. ठीक है जी? तो पहली चीज इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको डिफाइन करनी है,
जो मुझे नजर आ रही हैं वो ये है। आई टोल्ड यू माई स्टैंडर्ड। कंज्यूमर सरप्लस को समझाने के कुछ तरीके हैं। डायग्राम मांगा है, डायग्राम नहीं मांगा है, लेकिन मैं सपोर्ट के लिए फिर भी दे दूंगा। Consumer surplus is the difference between what the price consumer is willing to pay and what they actually pay. It is the area below the demand curve and above the equilibrium price या market price. Equilibrium जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन market price would be reasonable क्योंकि maximum price में इसका एक impact आता है। ओके, उसके बाद डायग्राम भी बना के दिखा दिया। इंक्रीज इन द प्राइस के साथ मैंने प्रूफ कर दिया कि कंज्यूमर सरप्लस के अंदर जो है वो ड्रॉप आएगा। उसके लिए मैं डायग्राम भी बना के दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से जब कंज्यूमर सरप्लस में प्राइस के अंदर इंक्रीज आएगा, तो दिस इज व्हाट माय डायग्राम इज गोइंग टू बी। लेबल्स मिसिंग नहीं होने चाहिए, पूरा पूरा एक मार्क कटेगा लेबल्स का। बेशक तुमने जबरदस्त प्राइस इंक्रीज दिखा के, कंज्यूमर सरप्लस रीजन्स दिखा के, ये भी मार्क किया, ये भी मार्क किया, ये भी मार्क किया, लेकिन यहाँ डी लिखना भूल गए या यहाँ क्यू लिखना भूल गए या प्राइस लिखना भूल गए, दैट मार्क इज गॉन। समझ आ गई है? तो एक नजर के अंदर तुम्हारे डायग्राम में मुझे हर चीज नजर आनी चाहिए। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दैट हाउ a price rise is going to cause the consumer surplus to fall. That is what my 6 marks, 6 marks तो पूरे नहीं मिलने चाहिए इसके ऊपर, बट 3 मार्क मेरी नजर के अंदर तुम्हें इस बात से मिल जाएंगे। फिर consider whether imposing a new indirect tax increases or reduces the consumer surplus। यहां पर ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो कि डायग्राम मांगा तो नहीं है, तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू गिव अ डायग्राम। बट इफ यू आर गिविंग अ डायग्राम, दिस इज व्हाट इट शुड बी अबाउट। और उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर दे देना प्लीज, मेहरबानी करके। तो हम वही दिखाएंगे कि ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम है। E0 मार्क कर लेते हैं, और फिर P0 मार्क कर लिया। और जब इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को तो ऑब्वियसली आप डिफाइन कर चुके हैं। और लाइक आई सेड, व्हेन यू डिफाइन यू गो ऑन अ होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आइडिया कि देखें जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इम्पोज होते हैं गुड्स एंड सर्विस के ऊपर, और उससे प्रोड्यूसर के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो राइज कर जाती है। इसकी वजह से जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट पे या अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस राइज होती है और क्वांटिटी डिमांडेड में रिडक्शन नजर आती है। ठीक है, लेकिन मेनली व्हाट हैपेंस टू द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग। तो मैं जरा सप्लाई कर्व को भी लेफ्ट पे शिफ्ट करके दिखा देता हूं कि देखें जी, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ all the explanations that I've done. You notice how I'm working with my labels. तुम लोग को क्लास में मैंने ऑब्जर्व किया था, जितनी दफा मैं तुमको बताऊं ना कि ये करो, पर तुम लोग करते नहीं थे। तो ये आपका ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस। आई बीन वर्किंग विद लाइक मार्किंग कि अब जो प्राइस बढ़ गई है, तो अब जो आपका नया कंज्यूमर सरप्लस है वो ये एक छोटा सा एरिया है, एरिया 1। कंज्यूमर सरप्लस के अंदर जो है ड्रॉप आ गया है। कंसिडर वेदर इम्पोजिंग इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीसेस और रिड्यूसेस कंज्यूमर सरप्लस। अब डिमांड कर्व इलास्टिक हो कि इन इलास्टिक हो, ओके, डिमांड कर्व इलास्टिक हो कि इन इलास्टिक हो, कंज्यूमर सरप्लस ने गिरना ही है। ये आपका इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट है कि it does not matter whether the demand curve is elastic or inelastic, the consumer surplus will fall if there is an increase in the price due to new indirect tax. Okay? It's only a matter of whether the consumer surplus will fall by a large amount or a small amount. राइट? तो अभी तक हम पीछे करते आए, तो आई होप इट सॉर्ट ऑफ लाइक concludes the last 2 questions with this one,
and how the whole thing sums up and gets together and tied. Okay, and it's just an 8 marker question, right? तो इसके अंदर डायग्राम मांगा नहीं है, बनाओ सपोर्ट के लिए और उसको एक्सप्लेन करो, जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है। Other questions on indirect and direct taxes could be to do with inequality का टॉपिक। क्या inequality का टॉपिक आ सकता है? वेल, डेटा वाइज इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चन है वो जून के अंदर आ चुका है, जिनी कोफिशिएंट और इनइक्वालिटी के करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां यू हैड टू मेक दैट डिस्कशन एंड वी डिड। उसके अलावा इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चन है वो 2023 के अंदर, मार्च के अंदर आया है। तो टेक्निकली इनइक्वालिटी पे हमारे वेरिएंट के अंदर कुछ खास ज्यादा चीजें आई नहीं है, लेकिन अक्टूबर का सॉरी केस स्टडी जरूर आ चुका है इनइक्वालिटी के ऊपर। बट ऐसे के अंदर अगेन नॉट मच हैज कम। ओके, तो कोई अगर मिक्स करके आ जाता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव को देखते हुए, और ये बाय द वे माइक्रो का क्वेश्चन बनता है, ये यूनिट 3 में से हमने उठाया है इस क्वेश्चन को। So, what do we need to know about progressive direct tax and regressive indirect tax? What is the difference between them? प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो आपका लगता है इनकम्स के ऊपर, राइट? इसका मतलब ये होता है द हायर द इनकम द हायर एवरेज टैक्स रेट इन परसेंटेज यू पे, एंड इफ योर इनकम फॉल्स डाउन द एवरेज टैक्स रेट ऑन यू फॉल्स डाउन। It is fair, it promotes equality. Okay. Regressive tax, on the other hand, is imposed on, oh, sorry, I did not mention about progressive, that it is imposed on incomes and wealth. Okay, like income tax and wealth tax that people pay. जहां तक बात है रिग्रेसिव की, दे आर indirect taxes. They are imposed on goods and services. Regress taxes क्या होता है? When your income goes up, the average tax rate you pay falls. And if your income goes down, the average tax rate you pay goes up. That's the scenario with it. It's much more, it increases inequality. So these would be some of the things that I would write. Obviously, इस question के अंदर consider का element नहीं दिया हुआ है, but obviously what we want to, किसी किस्म का भी हो सकता है, but just for general knowledge, usually indirect taxes का जो purpose होता है, the purpose is to discourage people from consuming certain types of goods, और income tax का main purpose होता है revenue generate करना, so that you can spend that money on people. However, sometimes the government relies heavily on indirect taxes because of the advantages it has. Easy to implement, increases the tax bases, everyone comes into the tax net basically, right? इनकम और वेल्थ टैक्स में मसला ये है कि जब वो राइज करती है और आप परसेंटेज बढ़ाते हो तो लोग टैक्स एवेजन करते हैं। इनकम टैक्सेस आर मच मोर इजियर टू इवेड, डायरेक्ट टैक्सेस आर मच मोर इजियर टू इवेड as compared to regressive taxation. Direct taxes are much more costly to collect as compared to regressive taxation. ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो तुम्हारे को रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल के बारे में पता होना चाहिए। Discuss the ways in which a government can redistribute income in a lower middle income country. पाकिस्तान लोअर मिडिल इनकम कंट्री के अंदर आता है, अफगानिस्तान लोअर इनकम के अंदर आता है, मलेशिया अपर मिडिल के अंदर आता है। सो नाउ इफ यू हैव अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज कंट्रीज, इंडोनेशिया अपर मिडिल के अंदर आता है। ओके,
तो इस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इम्प्रूव करना चाहती है, तो जस्ट फॉर स्टार्टिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन व्हाट डू आई मीन बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. Redistribution of income means that the gap between the rich and the poor should close. Okay? People should get the fair income. Right? तो अब ऐसे सिनेरियो के अंदर what could be the ways through which you can do this? अब ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऊपर आपने पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है एंड टॉक्स हैव बीन डन अबाउट इट. तो डेफिनेटली ये आपका एक जरूर क्वेश्चन का एक हिस्सा बन सकता है इन द वेज. तो एक तरीका है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और फिर उसकी लिमिटेशन को बात करना. ठीक है, विच वी जस्ट डिड इन सेकेंड अगो. दूसरी चीज जो हमें पसंद है वो है ट्रांसफर पेमेंट. Transfer payments is basically the money the government gives to people. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपका सोशल सिक्योरिटी पेमेंट भी आ सकता है, इसके अंदर यूनिवर्सल बेनिफिट, social security is part of that, unemployment benefit, right? So this money basically, when you don't have nokri and you don't have incomes, the government gives you the money to go and spend this, right? It is obviously coming from the rich people's pocket or the tax collection you've done, और आप ट्रांसफर पेमेंट्स करते हैं. ट्रांसफर पेमेंट्स ऑब्वियसली लोगों में डिसइंसेंटिव क्रिएट करता है, राइट? डिसइंसेंटिव किस तरह से क्रिएट करता है? क्योंकि अगर मुझे घर बैठे पैसे मिल सकते हैं, तो देन व्हाई शुड आई गो एंड वर्क? So it might create disincentive. It might reduce the supply of labor. That can cause the wages to go up. सो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एक तो नंबर वन ट्रांसफर पेमेंट्स आप इसलिए नहीं दे सकते हो बिकॉज गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है. दैट्स द वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद देम, बिकॉज वो पब्लिक गुड्स पे फोकस कर रहे हैं, मेरिट गुड्स पे फोकस कर रहे हैं. तो ट्रांसफर पेमेंट्स के लिए कोई खास प्रायोरिटी बनती नहीं है उनके पास, राइट? तो अब आपने ये पॉलिसी भी बात कर सकते हो, दिस इज अ फेयर पॉलिसी टू सॉर्ट ऑफ मेक. आप सब्सिडी की भी बात कर सकते हो कि एसेंशियल गुड्स को सब्सिडी दे दें, उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगी और सप्लाई बढ़ेगी. ज्यादा प्रोडक्शन होगी एसेंशियल गुड्स की, तो उसकी प्राइस गिरने की वजह से ज्यादा अफोर्डेबिलिटी भी हो जाएगी. बट देन द लिमिटेशन, गवर्नमेंट माइट नॉट हैव द मनी, producer might not use that money to increase the supply, mismanagement, all of those things, right? So that can be it also. सब्सिडी पे काफी सारा कुछ आ चुका है इन द रिसेंट पास्ट, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग जो सब्सिडी पे नहीं आया है, वो इज सब्सिडी की वजह से प्रोड्यूसर सरप्लस को क्या इफेक्ट आएगा, और सब्सिडी के इंसिडेंट्स के ऊपर कुछ खास कोई क्वेश्चन बना नहीं है. तो प्लीज, अगर सब्सिडी पढ़नी है तो सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यू मस्ट डू द इंसिडेंट्स ऑफ सब्सिडी, बिकॉज दैट हैज नेवर कम. कभी भी नहीं. अगर मुझे कोई बच्चों को गूगली भेजनी है, तो दिस इज व्हाट आई वुड गिव, इंसिडेंट्स ऑफ सब्सिडी बता दो. दैट वुड बी लाइक अ हेल क्वेश्चन. ओके जी. In April 2018, South Africa became the largest of a growing list of countries to introduce a sugar tax on cans of soft drink. Other countries have rejected such tax. We just did a question similar to this, right? Theme wahi hai. Explain how the sugar tax is likely to affect the market for can of soft drinks in South Africa, and consider how the tax might be most effective. ठीक है जी. मोस्ट इफेक्टिव टैक्स कैसे है, ये जो दो बातें हैं इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूं तुम्हारे लिए. पहली बात, एंड आई गो अ लिटिल मोर ऑन द verbal side here. It's an indirect tax imposed on goods and services, like sugar in this case. It increases the cost of production, shifts the supply curve to the left, raises the price,
and reduces the quantity demanded. That is how it would work. ठीक है? But would it always work? Okay? So it would not work because sugar is an addictive product and it has an inelastic demand. So the percentage rise in the price will be greater, while the percentage fall in the quantity demanded will be smaller. तो जो चीज आप चाह रहे थे कि it's a harmful good, we want the reduction of it, it's not working. It's not going to work in that case. How can it be most effective? Well, दो तरीके मुझे तो नजर आते हैं. एक मोस्ट इफेक्टिव का तरीका ये है, बहुत ही हाई इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए जाए. बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स लगा दें आप. मेक देम हेल एक्सपेंसिव. तो बहुत प्राइस बढ़ जाएगी. इवन इफ इट इज इन इलास्टिक डिमांड, इवन इफ इट इज एन इन इलास्टिक डिमांड, छोटा सा टैक्स लगाओगे तो कुछ खास फर्क आएगा नहीं. बहुत बड़ा टैक्स लगा दोगे तो फिर शायद थोड़ा सा रीजनेबल इफेक्ट आ जाए. अंडरस्टूड? तो वो उसने बोला मोस्ट इफेक्टिव किस तरह से हो सकता है, तो मैंने बता दिया एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका ये है कि किसी तरह से अगर हम इसकी इलास्टिसिटी को चेंज कर दें और पीईडी को इलास्टिक बना दिया जाए किसी तरीके से कि लोग सेंसिटिव हो जाएं टू द प्राइस चेंज ऑफ शुगरी ड्रिंक्स. वेल, health and awareness campaigns can definitely do that. Okay? It will be time consuming, but eventually एक तरफ हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरी तरफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कैन मेक दिस डिमांड कर्व इलास्टिक एंड कैन कॉज a major reduction in the quantity, which was our purpose in the first place. I hope that makes sense to you. Moving on, discuss why some countries have introduced sugar taxes while other countries have rejected the idea. सिंपल है, टैक्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करनी है. वही बात है. शुगर देखो पाकिस्तान में भी कंज्यूम होती है. जरूरी नहीं है कि हर शुगर चॉकलेट के अंदर ही जा रही है. शुगर कैन गो इन अ लॉट मोर अदर थिंग्स ऑल्सो, जो लोगों की डे टू डे कंजम्पशन के लिए. पाकिस्तान में तो शुगर एनर्जी के लिए कंज्यूम की जाती है. इस तरह से चाय के अंदर आप शुगर डाल के पीते हैं तो डेफिनेटली उससे इफेक्ट आएगा. इलास्टिक बनाने का एक और तरीका जो ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर है, यस इफ द सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो जाए तो इसकी इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूट बढ़ जाए तो डिमांड इलास्टिक हो जाएगी. एंड व्हाट डू वी हैव, दुनिया भर के अंदर आ रही है ना, देयर इज दोस अदर बेस्ड, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, समथिंग विद एस, sativa or something like that, which is a plant-based sugar. That's an alternative to it. So obviously आ सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, और भी बहुत तरीके हैं. Anyhow, sorry. Discuss why some countries have introduced sugar taxes while others have rejected it. So advantage and disadvantage, you're talking about taxation on goods and services like sugar over here. जिसके अंदर तुम इसके रिग्रेसिव नेचर की भी बात करोगे, जिसके अंदर तुम इसकी प्राइस राइज होने की वजह से, एडिक्टिवनेस की बात करने की वजह से, इसकी जो कंज्यूमर बर्डन है उसकी तुम बात कर सकते हो. कंज्यूमर बर्डन विल बी मोर ऑन, टैक्स का बर्डन विल फॉल मोर ऑन द कंज्यूमर्स. गवर्नमेंट विल डेफिनेटली मेक मोर मनी इन दिस सिनेरियो, पर आप शुगर को एक एसेंशियल गुड भी कह सकते हो. Some countries have rejected, maybe because they feel that because of the inelastic nature, it does not really bring an impact, because people are will go and buy this, and that will take even a bigger chunk of their incomes. That's bad. They won't have a lot of money to spend on other goods and services.
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कंट्रीज माइट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ इट. So it's very similar to what part A is about, but it's just that कि तुमने इसके अब counter arguments को भी करना है. Explain which type of tax might improve the distribution of income in a country. Which type of tax? Obviously, they're talking about your progressive and regressive, right? जब आप प्रोग्रेसिव की बात करते हैं तो बेसिकली आप डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं जो इनकम बेस्ड है. और जब आप रिग्रेसिव टैक्सेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. एंड ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं. उसके अलावा वी स्पोकन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए एंड कंसिडर वन टैक्स दैट कैन बी मोस्ट इजीली applied in a lower middle income countries. It's obviously the indirect taxes, क्योंकि you don't have enough data to collect income tax and there's a lot of chori with indirect taxes. तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा क्वेश्चन उसी इंफॉर्मेशन जो अभी हमने पीछे किया है उसी इंफॉर्मेशन को लेके चल रहे हैं. टैक्स प्रोग्रेसिव इनडायरेक्ट रिग्रेसिव कौन सा मिडिल इनकम कंट्रीज में अप्लाई करना आसान है. क्योंकि मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर जो आपकी टैक्स सर्विसेज एजेंसीज हैं जैसे एफबीआर है पाकिस्तान के अंदर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. उसके पास इतना अच्छा डेटा नहीं है. उसके पास इतनी अच्छी टैक्स कलेक्शन नहीं है. और टैक्स इवेजन के बहुत लोगों के पास तरीके हैं. वेल्थ को मेजर करने के कोई तरीके नहीं है बिकॉज वेल्थ कई बहुत सारे तरीकों से मेजर हो सकती है. तो क्योंकि वी डोंट हैव गुड सिस्टम लो मिडिल इनकम कंट्री के अंदर तो रिग्रेसिव ही सबसे आसान और इजी तरीका है टैक्स कलेक्शन के लिए. And that brings us to the last question of my day today, for which we've been doing all of this work. With the help of a demand and supply diagram, explain the effects on consumers and producers when a government introduces an indirect tax on a good, and consider the distinction between the impact and the incidence of such a tax. ठीक है जी. It's a very heavy question and it is like packed with a lot of information. Few things that we should talk about immediately is indirect tax क्या होता है, क्या करता है. ओके. क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायग्राम आपका बनेगा उस डायग्राम के अंदर कितने डायग्राम मांगे. डायग्राम है नॉट एस और एनीथिंग. इट्स जस्ट अ डायग्राम. दैट मींस वन डायग्राम इज गुड इनफ. ओके. थोड़ा सा मैं तुम लोगों की थ्योरी को भी टारगेट करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर. बट दैट डजंट मीन दैट इस क्वेश्चन के अंदर उसका होना जरूरी है व्हाट आई एम अबाउट टू डू. बट या इस क्वेश्चन के अंदर जो बात करने की है वो ये है. एक इनडायरेक्ट टैक्स लगने से जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट पे शिफ्ट होता है. उसके लेफ्ट पे शिफ्ट होने की वजह से प्राइस बढ़ती है और क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है. फिर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन दैट टेक्स प्लेस. ठीक है. कंज्यूमर के लिए प्राइस में इजाफा हो जाता है. ओके. अगर मैं सरप्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ये ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस था. ठीक है जी. और ये ओरिजिनल प्रोड्यूसर का सरप्लस है. इनडायरेक्ट टैक्स लगने की वजह से कंज्यूमर का सरप्लस गिर जाता है और ग्रीन एरिया पे लिमिट हो जाता है. टैक्स लगने की वजह से
ये वर्टिकल डिस्टेंस आपका टैक्स रेट रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये वर्टिकल डिस्टेंस आपका टैक्स रेट रिप्रेजेंट करता है। और देखा ये जा रहा है कि जो प्रोड्यूसर का सरप्लस है वो तो और मजीद गिर जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को तो P2 की प्राइस मिलेगी। प्रोड्यूसर का सरप्लस भी गिर जाता है। और जो गवर्नमेंट है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, वो ये सारा पैसा ले जाती है, द रेड एरिया। इफ आई वांट टू गिव मार्किंग, दिस इज व्हाट आई कैन डू। बिकॉज जब उसने कहा कंसिडर द इम्पैक्ट, जो क्वेश्चन के अंदर दो बातें की ना, कि इम्पैक्ट बताएं और इंसिडेंस बताएं कंज्यूमर पे और प्रोड्यूसर पे, यू मिस आउट ऑन एनी ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज, यूर इन अ मैस। नंबर वन, कंज्यूमर के लिए प्राइस में इजाफा आएगा, कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी, कंज्यूमर का कंज्यूमर सरप्लस में ड्रॉप आ जाएगा टू एरिया वन, फ्रॉम एरिया वन प्लस टू प्लस थ्री। प्रोड्यूसर को क्या होगा? प्रोड्यूसर ऑल्दो प्राइस तो ज्यादा चार्ज करेगा, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए टेक्निकली जो अगर आप देखो, तो प्रोड्यूसर का जो ओरिजिनल सरप्लस था वो P0 × Q0 था। और अब टैक्स लगने के बाद प्रोड्यूसर का सरप्लस जो है वो P1 × Q1 है। अब रेवेन्यू बढ़ा कि गिरा वो तो इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन वन थिंग फॉर श्योर इज कि जो प्रोड्यूसर का सरप्लस है, दैट हैज गॉन डाउन टू ओनली एरिया 6। 4 और 5 प्रोड्यूसर की जेब से निकल जाता है, बस उनको तो बेचारों को सिर्फ P2 की प्राइस, कंज्यूमर से उन्होंने प्राइस P1 की चार्ज की है बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम, लेकिन उसमें से इतना तो गवर्नमेंट ले जाती है, तो उनको एसेंशियली P2 की ही प्राइस मिलती है, तो ये सिर्फ इतना सा सरप्लस बनता है उनको। तो प्रोड्यूसर को भी नुकसान हो जाता है एक तरीके से इधर। फिर उसके बाद जहां हम बात करते हैं इम्पैक्ट वर्सेस द इंसिडेंस, तो इधर ये बात है कि इंसिडेंस की बात करो तो सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी की बात हो रही है, और इंसिडेंस की बात करो तो हु इज पेइंग मोर टैक्स एंड हु इज पेइंग लेस। बेस्ड ऑन माय डायग्राम, द कंज्यूमर बर्डन ऑफ द टैक्स इज 2 एंड द प्रोड्यूसर बर्डन इज 4। अब असल डिस्कशन तो ये है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स आएगा किसके ऊपर और उसका बर्डन ज्यादा किस पे जाएगा। तो वहां पे आपका फिर डिस्कशन होता है कि अगर डिमांड कर्व इन इलास्टिक हो, यू डोंट नीड टू मेक दिस बट दिस इज जस्ट फॉर मी फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, कि अगर डिमांड कर्व इन इलास्टिक होगा और आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, तो कंज्यूमर के लिए जो प्राइस में इजाफा आएगा वो ज्यादा होगा, और जो प्रोड्यूसर का बर्डन है वो कम होगा। प्राइस में ज्यादा शूट अप आएगा, ये इम्पैक्ट मैं समझा रहा हूं, और क्वांटिटी में कम इंक्रीज आएगा। वेयर एज अगर डिमांड कर्व ज्यादा इलास्टिक हो और आप सेम अमाउंट का इनडायरेक्ट टैक्स लगाएं, तो प्राइस के अंदर जो इम्पैक्ट आएगा वो कम है और क्वांटिटी में जो फॉल है वो ज्यादा है। लेकिन जो कंज्यूमर का बर्डन है वो बहुत थोड़ा सा होगा, और जो प्रोड्यूसर्स का बर्डन है वो काफी ज्यादा होगा। अब ये मैं सिर्फ वर्बली आई कैन suggest फॉर माय essay purposes, and we will be pretty we'll be all right. That is how this would uh, work for me. तो ये मेरा बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू है कि दिस इज वन ऑफ द वेज थ्रू विच इंसिडेंस ऑफ टैक्स का क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर टैक्स किसके ऊपर फॉल करेगा, किस पे नहीं करेगा, किस पे बर्डन ज़्यादा है, किस पे बर्डन कम है, इलास्टिसिटी को देखते हुए। दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। ठीक है जी। तो दिस इज वन थिंग दैट आई वुड फोकस ऑन अ लॉट।